Today we will learn about the powerful words. आज हम सामर्थी वचन के बारे में सीखने वाले हैं। According to Bible, which is the powerful word? बाइबल के अनुसार कौन से शब्द सामर्थी शब्द हैं? Or in the world, what is the powerful word among human beings? मनुष्यों के बीच में पूरे संसार में कौन से सामर्थी शब्द हैं? मनुष्यों के बीच में इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सामर्थी शब्द कौन से, इसके बारे में हम देखेंगे। Every nation will use this word. हर देश इन शब्दों का उपयोग करेगा। Every language people. हर भाषा के लोग। They'll use in India, China, Japan, America, everywhere you go. जहां भी आप जाए, भारत, चाइना, जापान, अमेरिका, हर जगह इसका उपयोग होता है। These words are powerful words. ये शब्द सामर्थी शब्द हैं। Right on, which are the powerful words in the world? लिख लीजिए कि संसार में सबसे सामर्थी शब्द कौन से हैं? First word. सबसे पहला Psalms 95 verse 3. भजन संहिता 95 वचन 3। Psalms 100. भजन संहिता 100। The greatest word is God. What is the greatest word in the world? संसार में सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? God. It is the greatest. परमेश्वर, ये तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। Above than God, there is no greatest. परमेश्वर से बढ़कर और कोई भी महान नहीं है। Everything ends with the God. सब कुछ परमेश्वर से खत्म होता है। The second word, दूसरा शब्द, which is the deepest word. जो सबसे गहरा शब्द है, The greatest word is God. The deepest word is soul. Matthew 16 verse 26 says, man's soul is the deepest one. मत्ती 16:26 कहता है कि सबसे बड़ा शब्द जो है वो तो परमेश्वर है, सबसे गहरा शब्द तो मनुष्य का प्राण है। Greatest word is God. The references Genesis chapter 1, 2. You can see beginning of everything God is there. सबसे बड़ा शब्द तो परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में आप देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से ही शुरू हुआ है। The deepest word, you can see the soul. God breathed into a human being, the body which was made out of dust, and he became alive. Genesis chapter 2, 7 and 8, Proverbs chapter 20, verse 27, and Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Man's spirit is more important. उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 और 8, नीति वचन 20:27, सभोपदेशक 12:7 कहता है कि मनुष्य की आत्मा सबसे गहरी बात है। Third one, write it down. Longest word in the world is eternity. और तीसरी बात लिख लीजिए कि सबसे बड़ा शब्द जो है, सबसे लंबा शब्द तो अनंत काल है। Matthew 25 verse 46, longest word is eternity. Jesus came to give life abundant. John chapter 10, 10 and 11. मत्ती अध्याय 25 वचन 46, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 और 11, सबसे लंबा शब्द तो अनंत काल का है। John 3:16 also, he came to give eternal life. यूहन्ना 3:16 भी कि वो अनंत जीवन देने के लिए आया। The fourth one, चौथी बात, quickly note it down. The swiftest word is the time. It swifts always. It will swift from 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1. Again, every minute, every second, every hour, it swifts. आगे बढ़ने वाला शब्द तो समय है, 10 से 11, 11 से 12, इस तरह से आगे बढ़ने वाला शब्द तो केवल समय है। Ephesians 5:16 says the swiftest word, always swifting word is time. इफिसियों 5:16 कहता है कि हमेशा बदलने वाला जो शब्द है वो तो समय है। Days are evil, so use your time as a wisely. Bible says, Ephesians chapter 1, see then that you walk wisely, not as fools, but as a wise person, and saving your time, using your time for good things, redeeming your time for good things. समय को अच्छे कामों के लिए छुड़ाते चले जाएं, अच्छे समय के लिए हम अपने समय को बचाते जाएं और बुद्धिमानी से समय का उपयोग करते जाएं। Which is the sixth one. ये छठी बात है। The darkest word is sin in the world. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, and Genesis chapter 3 verse 1 to 5, and 1 John chapter 3 verse 1 to 4 says, disobedient to God's word is a sin. A sin is the darkest word in the world. यशायाह अध्याय 59 वचन 1 और 2, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से 5, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 से 4 कहता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग करना ये तो पाप है, और पाप संसार का सबसे अंधकार का भरा शब्द Seventh है। one. सातवीं बात, Meanest word is hypocrisy. Matthew chapter 7, 5, Matthew chapter 23, verse 15 to 28. सबसे कठोरता का शब्द तो ढोंगी है। मत्ती अध्याय 7 वचन 25, मत्ती अध्याय 25 वचन 15 से 28 तक। God doesn't like hypocrisy. परमेश्वर को ढोंग पसंद नहीं है। Don't live like a hypocrite. ढोंगी जैसे न जिए, Never allow hypocrisy. ढोंग को आने मत दीजिए। The eighth one. आठवीं बात, Narrowest word is a truth. It is wonderful word. You have to follow the truth. सबसे छोटा शब्द है सत्य, और आपको सत्य के पीछे चलते चले जाना होगा। John 8:32. यूहन्ना 8:32, Truth shall set you free.
सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। John 14:6, He is the truth. यूहन्ना 14:6 वो सत्य है। Jesus is the truth. यीशु सत्य है। The next point. अगला पॉइंट, 9th one, the strongest word in the world is a right thing, right. इस संसार में सबसे मजबूत शब्द है सही। सही, ये शब्द सबसे मजबूत है। Psalms 33 verse 4. भजन संहिता 33 वचन 4। People will say, yes, it's correct, correct. When they say correct, then that is correct. It's the right thing. लोग कहते हैं ये सही है, ये सही है, इसका मतलब वही सही है। And then 10th one, write it down. The tenderest word is love in the world. 10वीं बात, सबसे कोमल शब्द इस संसार में तो Corinthians प्रेम chapter है। 13 verse 4 to 8. God's love is precious than any other love in the world. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से 8, परमेश्वर का प्रेम इस संसार में सबसे कोमल है, सबसे कोमल है। When you read Jeremiah chapter 30 verse 3, it says that God's love is everlasting love. यिर्मयाह 31:3 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम तो अनंत काल का है। God's love is unchanging love. परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, Always it will be with you. वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। The 11th one, the sweetest word is heaven. Sweetest word for every nation, every mankind, or anybody in the world. Everyone says, I want to go to heaven. Everyone will use this 11वां word. शब्द जो सबसे मधुर है वो है स्वर्ग। हर एक देश में सभी लोग ये कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना है, ये सब लोग कहते हैं। John chapter 14 verse 1 to 4, Jesus said, do not be trouble your hearts. Trust in God, trust in me, believe in me. I will give you heaven. In my Father's house there are many mansions. Don't worry if you don't have anything on this yet. I will give you mansion in heaven. यूहन्ना 14:1 से 4 ये कहता है कि तुम अपने हृदय में परेशान न होना, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्गलोक दूंगा, तुम अपने मन में व्याकुल नहीं होना, लेकिन मैं మీ तुम्हें स्वर्ग హృదయమును दूंगा। కలవరపడనీయకుడి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచున్నారు నా యందును విశ్వాసం ఉంచుడి రెండవ వచనం यूहन्ना में ये कहता है कि मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह है। If there is no vacancy, I'll tell you. I would have tell you long back. But there is enough place. Come, everybody get saved, be baptized. I'll give you heaven. I'll give you a place in heaven. There is place still, God is saying. पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह है, और अगर नहीं होती तो मैं तुमसे कह देता, मैं जहां पर रहूं वहां पर तुम भी रह सको। What a great insurance, assurance we got it through Jesus. यीशु के द्वारा हमें कितनी बड़ी शाश्वती मिलती है। Next, 12th one, write it down. The dearest word is Jesus. The dearest అంటే బాగా క్లోజ్ గా నీ హృదయానికి నీ ఆత్మకు నీ మనస్సుకు సమీపస్తుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు। 12वां शब्द जो कि सबसे प्यारा है वो तो यीशु है। The word Jesus, the name Jesus should be a dearest to your spirit, dearest to your mind, dearest to your whole life. यीशु ये जो शब्द है ये तो आपके लिए सबसे प्यारा है, और ये सबसे आपके जीवन में प्यारा The शब्द name है। of all names, the Bible says, Book of Acts chapter 4 verse 12. प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 ये कहता है। Mark chapter 16 verse 17, Jesus said, in my name you shall cast out. मरकुस अध्याय 16 वचन 17 कहता है कि मेरे नाम से तुम John निकालोगे। 14:14, in my name you ask, you will get it. यूहन्ना 14:14 कहता है मेरे नाम से तुम मांगोगे तो तुम्हें John मिलेगा। 15:7, be in Jesus and let Jesus be in you, his words be in you. यूहन्ना 15:7 यीशु तुम में रहे और उसके वचन तुम में बने रहे। 1 John chapter 5 verse 11 and 12 says, in his name there is eternal life. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 और 12 कहता है कि उसके नाम में तुम्हें अनंत जीवन If मिलेगा। any person, preacher or any teacher comes to your house, a pastor says, don't call in the name of Jesus, don't pray in the name of Jesus. If they say they are false preachers, don't believe them. अगर कोई पास्टर आपके घर में आकर कहता है कि यीशु के नाम में प्रार्थना नहीं करना, तो वो झूठे प्रचारक है, उन पर विश्वास मत कीजिए। Be careful with the false झूठे preachers. प्रचारक के बारे में सावधान रहिए। So how many of you want to have all these sweetest and dearest words in your life? कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में सबसे प्यारे और सबसे मधुर शब्द हो? आप अपने हाथ उठाइए, Lift up your hand and pray. अपने हाथ उठाकर प्रार्थना The word कीजिए। God should be in your life. प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में हो, Soul is there in your life. वो प्रिय आपके जीवन में हो, Eternity should be in our life. उसकी विशेषता हमारे जीवन में हो, Managing time should be in our life. हमारे जीवन में प्रोत्साहन का समय हो। Come on, pray. Come on, pray. Lord, the word sin should not be in my life. प्रार्थना कीजिए, प्रभु पाप ये शब्द मेरे जीवन Lord, में ना हो, hypocrisy should not be in my प्रभु life. ढोंग मेरे जीवन में ना हो, But the truth, word truth should be in my life. लेकिन मेरे जीवन में सच्चाई शब्द हो। The love of God should be in my life. परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में हो, Heaven should be in my life, in my family. शब्द मेरे परिवार में और मेरे जीवन में होने पाए। The name Jesus should be always with me. यीशु ये नाम हमेशा मेरे साथ में होने पाए। Yes, Lord, touch my life, Father. हाँ पिता, मेरे जीवन को छू Praise me, ले, God. मुझे Use अभिषेक me, दे, God. मेरा उपयोग कर। Lift up your hands and say, Jesus, touch me. अपने हाथ उठाकर कहिए, यीशु मुझे छू ले, Lord, wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दे। The great word should be in my life. सबसे महान शब्द मेरे जीवन में हो।
of Jesus should be dearest to my life. यीशु का नाम मेरे जीवन में सबसे प्यारा होने पाए। Let me always walk with the love of मैं God. हमेशा परमेश्वर के प्रेम में चलते जाऊं। Fill me, मुझे भर दे, anoint me, मुझे अभिषेक दे, sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर, Sanctify me with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से शुद्ध कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु, love you, Jesus. मैं तुझसे प्रेम We करता praise हूँ, you, Master. मैं तेरी स्तुति करता हूँ। Be filled with the power. मुझे सामर्थ्य से Receive भर good दे, health. मुझे भर दे, Receive good health in Jesus' मुझे name. अच्छी तंदुरुस्ती दे यीशु के नाम में। Every disease go. हर एक बीमारी चली Every जाए, sickness go. हर एक रोग चले जाए, Every pain in the body go. शरीर का हर एक दर्द चले जाए, Evil spirits, demon spirits come out. दुष्ट आत्माएं निकल जाए, People be healed. लोग चंगे हो जाए, People be healed. लोग चंगे हो जाए, Deliverance come. छुटकारा आए, Wonders happen अद्भुत काम होने पाए in every house, हर एक घर में, every family. हर एक परिवार में। Deliverance in Jesus' name. छुटकारा यीशु के नाम में आए, Blessings in Jesus' name. यीशु के नाम में आशीष आए, Let there be peace in your house. आपके घर में शांति हो, Let the peace of Christ fill your heart. मसीह की शांति आपके दिल को भर दे, Peace of Christ protect your thought life. मसीह की शांति आपके विचार को सुरक्षित रखे। Thank you, my Jesus. धन्यवाद मेरे यीशु, Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। घनता महिमा प्रभाव ले सारी परिशुद्ध महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं। पिछले 10 साल से इनको हेडेक था, सर में दर्द था, शी कुड नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, बट आज पास्टर जी प्रे कर रहे थे आंखें की चंगाई के लिए। वो प्रेयर में शामिल हुई थी और उनको पूरा चंगाई मिली और वो बोल रहे कि कुछ भी सर दर्द नहीं है, शी कुड एबल टू सी प्रॉपरली। मेरे को 10 साल से मेरे को सिर दर्द से रहा, फिर आंखें की रोशनी भी कम दिखता था। तो अभी पास्टर जी प्रेयर करे के बाद मेरे को आंखें की रोशनी अच्छा सा दिख रहा, हेडेक को कम हो गया, घुटने का दर्द कम हो गया। मेरे को यीशु मसीह से पूरा स्वस्थता मिल गया। अभी मिल गया। देखने के लिए भी एक 4-5 साल से देखने का भी प्रॉब्लम था, आंखें का आईना नहीं, सो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो अभी पास्टर जी प्रेयर करने से मेरे को पूरा आँख पे उंगली लगा के प्रेयर करो बोले, हम ऐसे करें। अभी तो मेरे को पूरा स्वस्थता मिल गया, यीशु मसीह चंगा हो गया पूरा। Praise the Lord. Praise the Lord, sir. धन्यवाद प्रभु जी। मेरे को ये हाथ बहुत तकलीफ दे रहा था, 2 घंटे से मैं बहुत तड़प रहा था। मैं सुबह से ऐसा तड़प रहा हूँ, मछली तड़पे वैसा तड़प रहा हूँ। अभी मैं जरा फ्री हूँ, बहुत अच्छा है। अभी मैं उठा सकता हूँ, आराम से उठा सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया। मेरा नाम इप्सिता दास है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं मेरा नी पेन एंड चेस्ट पेन इसके लिए आई थी। बॉडी पेन हो रहा था, जॉइंट्स पेन में आर्थराइटिस पेशेंट हूँ। टिफिन पॉल मेरे लिए जो प्रेयर किए उससे मुझे अच्छा फीलिंग आया है और ब्रीथिंग में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। यहाँ तक जब तक थी तब तक बहुत पेन भी हो रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू डॉक्टर स्टीफन। मेरा नाम प्रतिभा है। 2 साल से मेरे को घुटनों में बहुत तकलीफ था। हम लोग बहुत इलाज करे, आयुर्वेदिक का करे, हॉस्पिटल में दिखाए, बहुत ये हो गया। पूरा ऐसा सूजन आता था, थोड़ा ऐसा पैर करे तो बहुत दर्द आता। नज़दीक भी नहीं ले सकती, ना दूर भी नहीं कर सकती, रात को नींद नहीं आना, कुछ भी नहीं। तो अभी मैं प्रेयर को हम लोग आए, आज मुझे यहाँ पर थोड़ा पास्टर की प्रेयर करने के बाद थोड़ा मेरे को महसूस हुआ। 2 साल हो गया, मेरे को एक बार सुनाई भी नहीं देता था। तो मैं बहुत प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे चंगा कर दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगी, आप जो बोलोगे वही करूँगी, आपके साथ जीऊँगी, आपके बात ही मैं सुनूंगी। मैंने वैसे प्रार्थना किया था। हाँ, अभी सुनाई दिया। 1 2 3 5 10। हाँ, अभी सुनाई दिया। 2 साल हो गया, अभी भी सुनाई दिया। प्रभु से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मेरा स्वस्थता प्रदान जरूर मिलेगा। 5-6 साल से मेरे घुटने में बहुत दर्द था,
और मेरे शरीर इतना भारीपन था कि मैं क्या बताऊं। और जब मैं यहाँ आके खड़ी हुई उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना हल्का हो गया प्रेयर करने के बाद, और घुटने में भी अब इतना दर्द नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिला है मुझे आज। अभी बिल्कुल हल्का है शरीर और कोई दर्द नहीं है, कुछ पेन नहीं है। सुवार्ता चैनल हम देखा है, जब भी पास्टर सुवार्ता बोल रहा था। अब हम तो बहुत खुशी हुआ पास्टर से मिलना, बात करना और प्रेयर करने को बहुत खुशी था। रात में ज़्यादा बुरा सपना और बुरा डरावनी था, नींद नहीं आता था, बहुत तलक नहीं होता था। जब भी पास्टर प्रार्थना किया है हमको स्वस्थ हुआ है, दुष्ट प्रॉब्लम दूर हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यीशु मसीह ने चंगा दिया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है। 2 साल से अभी नींद नहीं आती थी, सपना में पूरा कोई मरे जैसा लगता था। और जब बाइबल पढ़ने टाइम में एक अलग रखती थी और सो जाती थी। 2 साल से नींद नहीं आती थी, अगर नींद पड़ी भी तो उस कमर में बीच में कोई मरे जैसा आ जाएगा। अभी बहुत अच्छा है, इस प्रभु मेरे को बहुत अच्छा किया है और बहुत हल्का हो गया, मेरा दुष्टात्म हो गया, सब अच्छा। मेरा नाम शैलजा है, मेरे पति का नाम मोहन है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। पिछले साल जनवरी में पास्टर स्टीफन पॉल जी ने प्रार्थना करी थी, तो पास्टर जी ने कहा कि अगले साल ही आपके घर में झूला होगा। जिसको बच्चे नहीं है वो एक हाथ परमेश्वर की ओर करके दूसरा अपने गर्भ पर रखिए और मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहा। स्टीफन पॉल जी ने कहा, जो बहनें खड़ी हैं वो अपने गर्भ पर हाथ रख के लोरिया गाइए। मुझे तो शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने 2 बार लोरिया गाई ला 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 करके। तो मार्च के महीने में परमेश्वर ने मुझे बेटी से आशीषित किया। मेरा नाम पद्मा है। शनिवार की उपवास प्रार्थना में मैं यहाँ पर आती थी। जब स्टीफन पॉल पास्टर जी, जिसका खुद का घर नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे ही प्रेयर स्टेडियम के लिए निर्णय लीजिए कहा, तो हमने प्रेयर स्टेडियम के लिए दान देने का निर्णय लिया। घर न होने के कारण बहुत दुख होता था, किराया देने के लिए भी बहुत कष्ट होता था। क्या फिर ऐसी स्थिति में घर खरीद सकते थे? लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे। पास्टर जी के प्रार्थना करने के बाद हमने 60 गज का घर खरीदा है, इसलिए प्रेयर स्टेडियम के लिए दान देने आई हूँ। खुद का घर खरीदूंगी कभी भी नहीं सोचा था। लाइफ चेंजिंग सेंटर में आने के बाद हमारा जीवन सच में बदल गया। इसको हर महीने 120 रुपए का इंजेक्शन नसों में लगाना पड़ता था। डॉक्टर ने कहा था कि रक्त में इन्फेक्शन है। कोई भी दवाई देने पर भी बुखार कम नहीं हुआ। पिछले 10 दिन से ऐसे ही थी। अब आपके प्रार्थना के बाद बुखार नहीं है। टीवी में आपका संदेश सुन के यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद हमने बहुत बल पाया। मेरे पति ने भी शराब पीना और बीड़ी पीना बंद कर दिया। शराब और बीड़ी बहुत पीते थे, उससे भी छुटकारा मिला। मेरी बेटी पहले ऐसी थी, टीवी में सीरियल के लिए बहुत लड़ती थी, रिमोट के लिए, और अब तो आपका संदेश टीवी पर देखते रहते हैं। 20 साल हो गए हमें परमेश्वर का विश्वास करके, लेकिन ऐसा आनंद कभी नहीं मिला था। हमारे परिवार में प्रार्थना होना ये एक स्तंभ के जैसा है जो हमारे परिवार को बल देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरी पढ़ाई होने के बाद जॉब ट्राई करते वक्त पास्टर जी ने कहा कि जिसको जॉब नहीं है उनको उनकी इच्छा के अनुसार मनचाही कंपनी में जॉब परमेश्वर देगा। इस प्रकार मुझे वाइजैक में चाहिए था और मैंने प्रार्थना करी। इन्फोटेक कंपनी MCA में मुझे जॉब मिला, सॉफ्टवेयर डिजाइनर का। ये केवल परमेश्वर की कृपा और पास्टर जी की प्रार्थना के कारण ही हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं वहाँ पर खड़ी थी, तब मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब मैं आगे आई तो मैंने महसूस किया तो लगा कि यीशु प्रभु मुझे आशीषित कर रहे हैं। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मैं बहुत आनंदित हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरी जीभ घूमने लगी और मैं अनजान भाषा बोलने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम वेरोनिका है। मैं टीचर हूँ। 1.5 साल से मुझे साइट की प्रॉब्लम है।
मैं रीडिंग ग्लासेस यूज करती थी। बाइबल पढ़ने में भी कष्ट होता था। मेरी आंखों को प्रभु ठीक करिए कहती थी। घड़ी में टाइम भी साफ नहीं दिखता था। तो अब प्रार्थना करते समय मैंने प्रार्थना करी तो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, टाइम भी देख पा रही हूँ। तो अब मेरी घड़ी में 12:35 हुआ है। तो पहले देखने पर मुझे ऐसे देखना पड़ता था, अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नुबली वेरोनिका है। मैंने पिछले साल एक एग्जाम लिखा था कर्नाटका बैंक का। तो उस समय मुझे उल्टी दस्त होने के कारण मैंने एग्जाम अच्छा नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से मैं पास हो गई। लिखने के बाद मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मुझसे टोटल 16 प्रश्न पूछे थे। मैं 14 प्रश्नों का उत्तर दे सकी और सोचा था कि जॉब नहीं मिलेगा। पूरे साल इंतजार किया। इंतजार करने के बाद इस साल मई 13 को मुझे पोस्टिंग दी मछलीपट्टनम में। मेरा नाम अरुणा कुमारी है। मुझे करीबन 6 सालों से घुटनों का दर्द था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि घुटने घिस गए। रोज ये बेल्ट पहन के चलती हूँ। आज मैंने प्रार्थना में कहा कि प्रभु आज मुझे कंपलसरी छुटकारा चाहिए, तो उसके बाद बेल्ट निकाल दी। अभी मुझे चंगाई मिली है। बेल्ट के बिना मैं चल नहीं सकती थी, अब मैं बेल्ट के बिना चल पा रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी।